यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इकबाल ऑडिटोरियम में मुनक्कद की गई। इस मौके पर पाक फौज और पंजाब पुलिस के शोहदा के अहले खाना को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में सानिया बुटवीर के हीरो कैप्टन असफंदियार के वालिद डॉक्टर फयाज बुखारी ने भी शिरकत की। डॉक्टर फयाज ने यादगार कैप्टन असफंदियार की बहाली पर शहरी तैयब को गोल्ड मेडल पेश किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इकबाल ऑडिटोरियम में तकरीब जारी है, आइए आपको भी लिए चलते हैं। टुटा हुआ ध्यान नीचे रख लो। वसीम भाई, और इसके लिए ये एक दफा अभी एक स्टूडेंट श्रोता को ट्रिब्यूट पेश करेगा। To the martyrs of Pakistan. My honorable nation fellows, it's my great honor that I got the chance to be here with my nation, which is gracefully contributing to the nation. भूल गई Honorable President, respected teachers,
beloved members of audience, and to whomever my words may reach. Assalamu alaikum. Welcome to dear country fellows. It's an immense pleasure to say a few words about the martyrs of Pakistan Army, Rangers, police, and other security agencies who have made selfless sacrifices for the whole nation without considering anything besides the nation. They remain awake for 24 hours, standing at borders and even at every sensitive place for protecting the nation and its assets from wickedly attempts of the enemies. They do their best and often pay with their blood and lives for us, even when we have been sleeping. So it is time to pay our tribute to our martyrs and show them that the entire nation stands with them. They have proven their dedication for the nation, and history is full of their glorious sacrifices. In the wars of 1948, 1965, 1971, and 1998, our army fought bravely with full of their zeal and zest. Operation Zanbe as well as rescue and rehabilitation efforts in the wake of large-scale disasters are among the prominent nationwide glorious efforts performed by the Pakistan Army. Rangers, police, and other security agencies have been doing the same, perhaps with more care. On one hand, they are protecting the national assets, cooperating for the implementation of law, while on the other hand, they advocate the peaceful attempts to maintain law and order at each level. Celebrating Pakistan Martyrs Day on May 25 for showing tribute to the martyrs of Pakistan from across the country. It's a great step, and we proudly salute the martyrs of Pakistan forces, Rangers, police, and other enforcement forces. Our prayers and best wishes are for each martyr, and we ensure them that their prestige and loyalty remain respected, and it will keep on enhancing in our hearts. Pakistan Zindabad! Security forces Zindabad! हम रंग हैं, कलम हैं, हम कैनवस में जम हैं, और जिसका नक्श आगे हम ऐसा एक कदम हैं, हम अक्ल की गली हैं, हम इश्क का जहां हैं, हम तीर हैं, कमां हैं, हम पूरी दास्तां हैं, हमने ज़मीन तराशी, हमने फलक दिखाया, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। तस्वीर जाते हैं उर्दू के लिए नामो निशान सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह की राह में मरने वालों को मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें इस बात का शऊर नहीं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। सदर आली औकात, आज मुझे यौम तकरीम शुहदा पर लबकुशाई करना है। आज मुझे उन शहीदों को सलाम पेश करना है जिन्होंने मेरे देश के जर्रे जर्रे की हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने की कसम खाई है। आज मुझे खिराजे तहसीन पेश करना है उन शहीदों को, उन जवानों को, उन गाजियों को, उन मुजाहिदों को जिन्होंने मेरे देश के जर्रे जर्रे की हिफाजत की है, जिन्होंने खूने दिल दे के रुखे बरगे गुलाब निखारने की कसम खाई है, जिन्होंने हमेशा सीने पर गोली खाई है, जो ये कहते हुए जान जाने आप
साबित करो दानिश। जंग हो या मैदान, जंग हो या मैदान, मेरे वतन के मुहाफिज जिनका ताल्लुक पुलिस से है, जिनका ताल्लुक ट्रैफिक वार्डन से है, जिनका ताल्लुक रेंजर से है, सदर आली वकार खतरनाक काफिलों, चोरों, लुटेरों, रहजनों को कैप्टरेट की ताक तक पहुंचाने के लिए मेरे वतन के नौजवान मुहाफिज अपनी जान वतन से कुर्बान कर देते हैं। आज मैं उन माओ के लाडलों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। सदर आली वकार उन माओ के लाडलों को सलाम पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने इस धरती की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। सदर आली वकार जब पूरी कौम सो रही होती है तो ये नौजवान वतन की हिफाजत करते हैं। कभी सियाचिन की बर्फपोश वादियों में, कभी सगलाब चट्टानों में, कभी पहाड़ों पर, कभी मैदानों पर, सदर आली वकार कहीं समुद्रों का सीना चीरते हुए ये नौजवान घर से दूर हरदम रवां, हरदम जवां और पुरअज़्म रहते हैं। तो सदर आली वकार आज वक्त तकाज़ा करता है कि हम सब उन शहीदों को, उन गाजियों को, उन जवानों को सलाम पेश करें जो खुद तो मट्टी में मिल गए मगर इस वतन का परचम बुलंद कर गए। सदर आली वकार मैं उनको आज सलाम पेश करना चाहता हूँ। आज पूरी कौम, मैं आज पूरी कौम की तरफ से, तालिब इल्मों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से इस बात का यकीन दिलाता हूं कि पूरी कौम कल भी आपके शाना बशाना थी, पूरी कौम आज भी आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। और ये दुआ करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, सदर आली वकार, ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं, सलाम कहती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्म फोर्सेस पाइंदाबाद। एक कथा आप सब अहबाब के लिए और ख़ास तौर पर मेरे नौजवान बच्चों के लिए, मेरे हंजुआं दा पानी पी पी के, मेरे हंजुआं दा पानी पी पी के हरी भरी ये बंजर ज़मीन हो जाए, एदे चेहरे ते लाली चाई दिए, मेरे लहू तो भावें रंगीन हो जाए। तो अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। मार्का बर्ड पीर का हीरो कैप्टन इस्फंदयार बुखारी शहीद के वालिद गिरामी अटक से तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं डॉक्टर सैयद फयाज़ बुखारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि सर आप तशरीफ़ लाएँ और यौम तकरीम शोहदा के मौका पर अपने दिली जज्बात का इजहार कीजिए और हमारी कौम के नौनिहालों को पैगाम दीजिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्फंदयार देख रहा हूँ जो यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे, ये मेरे ही बच्चे हैं। और आपको मैं आज इस्फंदयार के एक दो ऐसे वाक़े बताऊँगा कि जब इस्फंदयार 4th क्लास में थे तो आर्ट वर्क के दौरान आर्मी पब्लिक स्कूल अटक में उनकी उंगली पे ब्लेड लगा तो खून बहने लगा। तो बच्चों ने कहा कि इस्फंद का खून बह रहा है। तो जब तक मैडम जरीना इस्फंद के पास पहुंचती, इस्फंद ने अपनी कॉपी पे अपने खून से लिखा PAK। तो जब PAK लिखा तो मैडम जरीना ने उसकी उंगली पकड़ ली कि ये क्या कर रहे हो। तो 8 साल के बच्चे ने दर्द आमेज लहजे में कहा कि मैडम मुझे पाकिस्तान पूरा तो करने नहीं देती। जब 18 सितंबर को 2015 जब बडमेर में इस्फंदयार की शहादत हुई और ढेरों गोलियों से जब सीने में खाई तो मेरे मुंह से निकला कि इस्फंदयार जो लेटर तुमने छोड़ दिए थे आज तुमने पूरे कर दिए। इस्फंदयार को जब सोर्ड ऑफ ऑनर मिली तो मीडिया जब हमारे पास आया तो इस्फंदयार से उन्होंने जो पूछा तो इस्फंदयार ने एक ही बात की कि आर्मी पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, यहाँ सिफारिश नहीं है। अगर आप में सलाहियतें हैं
गौर करें, अगर आप में सलाहियतें हैं तो आप पाक आर्मी को ज्वाइन करें। और मेरी जो मिसेस थी उन्होंने कहा कि आज जो तलवार इसफंदयार को मिली है ये जुल्फकार है और ये दुश्मनों पे गिरेगी पाकिस्तान, और आप यकीन करें कि ये फिर गिरी। इसफंदयार मेडिकल छोड़ के पाकिस्तान आर्मी में गया, उससे वहाँ सोल्ड ऑफ ऑनर ली, टेक्टस मेडल लिया, लेफ्टिनेंट टू कैप्टन इम्तिहान में पाकिस्तान आर्मी को टॉप किया। बहरहाल ये तो उसके एजाज़ात हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन 2 साल वो जनूबी वज़ीरिस्तान में रहा, 81 इनकाउंटर्स में रहा और अल्लाह के फजल से तमाम में पाकिस्तान आर्मी को फतह हुई। और जिस इनकाउंटर में इसफन की शहादत है, बच्चों गौर करना इस बात पे कि इसफन की वहाँ ड्यूटी नहीं थी। इसफन वहाँ ब्रिगेडियर अनैत के साथ वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए गए थे, तो वहाँ 28 लोग शहीद हो चुके थे, 29 जख्मी थे और मेजर हसीब जख्मी होकर जा चुके थे जो कमांड कर रहे थे। तो इसफन ने कहा ब्रिगेडियर साहब से कि सर ये कमांड मुझे दें। तो उन्होंने कहा कि आपकी तो ड्यूटी नहीं है, आप तो G3 हो। तो इसफन ने कहा कि सर जब वतन पुकारता है तो फिर ड्यूटी नहीं होती, सब कुछ ठीक होता है। इसफन ने कमांड ली 6:20 पे और उसकी कमांड में 8:07 पे आखिरी फ़ोन है उसका, जिसमें उसने कहा कि हमने ऑपरेशन ख़त्म कर दिया, तमाम दहशतगर्द मारे जा चुके, हमारा कोई शहीद नहीं है। तो आप ये देखें कि इसफन की कमांड से पहले 28 शहीद, 29 जख्मी, उसकी कमांड में कोई शहीद नहीं हुआ और फिर एंड में आखिरी शहीद एक रह गया था दहशतगर्द, जिस पे अल्लाह ताला ने इसफन को शहादत दी। अगली बात आपसे ये करता हूँ कि जब कोई बच्चा शहीद होता है उस वालिदैन का रद्द-ए-अमल क्या होता है। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो फौजी भी नहीं, पुलिसमैन भी नहीं। जब मुझे ये पता लगा कि इसफन बताया गया कि ज़ख्मी है, तो मैंने कर्नल वसीम से कहा कि नहीं सही बात बताएं। तो उन्होंने कहा जी इसफन को अल्लाह ने शहादत बख्शी। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे पेशावर में, तो मैंने कहा कि आई वांट टू सी माई सन। तो ब्रिगेडियर कामरान और ब्रिगेडियर जाहिद, आजकल वो जनरल हैं, तो उन्होंने कहा कि सर अंदर तो बहुत बॉडीज़ हैं। मैंने कहा नहीं, आई वांट टू सी माई सन, मैं उसको देखना है। मेरे अंदर एक तूफ़ान था, इसफन एक बहादुर इंसान था। मैं ये देख रहा था कि कैसे शहादत हुई, पीछे से किसी ने गोली मार दी, साइड में किसी ने मार दी, एम्बुश में उड़ गया, क्या हुआ। तो जब मैं अंदर गया तो बच्चों आप यकीन करना कि उस वक़्त की भी वीडियो निकाल लें, 7 साल पहले भी यही बात की थी कि मैंने इसफन का चेहरा नहीं देखा, मैंने इसफन की छाती से कपड़ा हटाया, उसके लेफ़्ट साइड पे खून ही खून था। तो मैंने इसफन को सलूट किया, तो मैंने कहा इसफन तुम्हें सलूट है कि तुम बहुत अच्छा काम करके आए। इसफन पाकिस्तान के खून आलूद झंडे में हमारे घर पहुंचा, तो हमने उसे देखा, अंदर ले आए, तो मुझे तसल्ली थी एक कि यार इसने अपने वतन के लिए शहादत दी, ड्यूटी नहीं थी फिर भी आगे गया, 5 दहशतगर्द भी मारे और एयरबेस भी बचाने की कोशिश की और कॉलोनी भी बचाई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे कब हुई? 9 मई को। जब 9 मई को मुझे अटक में पता लगा कि फैसलाबाद से मंसूब चौक को कुछ लोगों ने, 8-9 लड़कों ने आके डैमेज किया है, उसके बोर्ड उखाड़ दिए, पाकिस्तान का झंडा गिरा दिया, आर्मी का लोगो नीचे फेंक दिया, उसकी तस्वीर नीचे फेंक दी। तो यकीन करें कि मैं 18 सितंबर 2015 को नहीं टूटा, लेकिन 9 मई को टूट गया कि क्या हम शहीदों के साथ यही सलूक करेंगे? क्या इस कौम में फिर और इसफन पैदा होंगे? ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ दी। लेकिन मैं सलाम करता हूँ फैसलाबाद के गजूर शहरियों को, जब उन लोगों ने ये काम किया तो शहरी आगे आ गए
उन्होंने कहा कि ये फंड वो है जिसने 6 माह तक फैसलाबाद की सिक्योरिटी दी हमें, ये वो लड़का है। ठीक है, इस बच्चे का नाम पे हमने उस वक़्त के डीसी नूरुल अमीन साहब से कह के इस चौक का नाम रखवाया, उसके नाम को हमने यहाँ जिंदा रखा कि इस फंड हमारे साथ रहेगा। तो सब कुछ बिगड़ गया। फिर सल्यूट करता हूँ एक आदमी को कि मुझे उसने फ़ोन किया फैसलाबाद से, कहा कि सर फिक्र ना करें, 2 दिन दें, 2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। और 2 दिन के बाद उसने मुझे तस्वीर भेजी तो बिल्कुल उसी तरह से बोर्ड अपनी जगह पे लगे हुए थे, टेपें लगी हुई, उसी तरह से तस्वीर लगी हुई, आर्मी का लोगो लगा हुआ। तो ये फैसलाबाद का वो बंदा है जो ज़्यादा अमीर आदमी नहीं, आम आदमी ड्राइविंग करता है, लेकिन उसमें आर्मी की मोहब्बत और शौदा की मोहब्बत का जो ग्राफ है वो इंतहा पे पहुंच गया। आज मैंने जब आया तो मैंने कहा उस बंदे को बुलाएं, इसलिए कि मैं उसके लिए इस फन यार गोल्ड मेडल बनवा के लाया था कि ही इज़ द हीरो, ही इज़ द हीरो ऑफ द डे। तो मैं गुजारिश करता हूँ तैयब साहब से, वो आएँ, और ब्रिगेडियर साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं। तैयब साहब जी, आप तैयब साहब, मैडम कमिश्नर साहब, ये आगे सर तशरीफ लें, सर प्लीज़ आगे तशरीफ लें, सर आगे प्लीज़, सर सेक्रेटरी, मैम कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब आप भी सर। ये तकरीब शोहदा की तकरीम की तकरीब है और शहीदों गाजियों से मोहब्बत करने वालों का शहर फैसलाबाद। सर आप आगे आओ थोड़ा सा प्लीज़ आगे, थैंक यू तैयब के लिए बहुत सी तालियां। थैंक यू वेरी मच। शहीद के बाप ने जो काम किया है वो लाजवाल है। सर हम आपको भी सल्यूट पेश करते हैं। डॉक्टर साहब के लिए बहुत सी तालियां, बहुत सी तालियां। 18 सितंबर को यकीन करें कि जो मुझे दुख था, जो मुझे 18 तारीख को उतना गहरा घाव नहीं लगा जो 9 मई को लगा था, तो वो इस बंदे ने उस पर मरहम रखी। और आखिर में एक बात करूँगा, बच्चों एक सीधी इक्वेशन है, आप स्टूडेंट हो, एक इक्वेशन सुन लो, पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है, याद रखिए, सीधी बात, इसमें कोई पलड़ा ऊपर नीचे नहीं है। पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर के लिए एक दफा फिर ताली, और इस फंडियार के लिए नारा पाकिस्तान। सर ये जज्बे हैं हमारे जवानों के, ये जज्बे हैं हमारी कौम के, और ये जज्बे हैं पूरे पाकिस्तान के। हम जो है वो आपको भी सल्यूट पेश करते हैं। अभी सर हम में मौजूद है मोहम्मद अफजल शहीद का गयूर बेटा हमाद अफजल, वो भी आज की इस तकरीब में अपने जज्बात का इजहार करना चाहता है। हमाद अफजल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हमाद अफजल, मैं शहीद मोहम्मद अफजल का बेटा हूँ, और मेरे वालिद मोहतरम ने सन 11 सितंबर 2012 को डाकुओं का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मेरे वालिद मोहतरम 1984 में पंजाब पुलिस का हिस्सा बने और उन्होंने फ़र्ज़ की राह पर अपनी जान कुर्बान की, और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मेरे वालिद मोहतरम ने यूनिफॉर्म में अपनी जान का नजराना पेश किया, और इसी जज्बे के तहत इंशाअल्लाह मैं भी पंजाब पुलिस को ज्वाइन करूँगा। और जिसी तरीके से मेरे पापा ने पाकिस्तान और पाकिस्तान पाकिस्तान पंजाब पुलिस, थैंक यू वेरी मच। जी ये हैं जज्बात
कि इकबाल ने ठीक ही तो कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरिस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरिस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, समट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। मैं दावत देता हूँ कर्नल उमर साहब को कि आप आएँ और यौम तकरीम शोहदा के हवाले से अपने जज्बात पेश करें, लेकिन आपकी आमद से पहले नारा पाकिस्तान, पाक फौज, पाइंदाबाद, पाक फौज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल उमर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से तमाम सामीन और सिविल इंतज़ामिया का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने ये पुरवकार तकरीब आज 25 मई को तकरीम शोहदा के लिए इनेकाद की, और इस चीज़ का हम अहद आज करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारे शहीद हैं उनको ये कौम कभी भूलेगी नहीं, और हम बहैसियत कौम, एक ज़िंदा कौम होने के नाते हम इस चीज़ का अहद करते हैं कि जिस भी शख्स ने, ख्वाह वो सिविल यूनिफॉर्म में है, किसी सिविल अदारे से है, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से किसी का तल्लुक़ है, जिसने इस मुल्क की खातिर जान दी है, वो शहीद है, और वो इस वतन के लिए उसने अपनी जान और अपनी माल, अपनी औलाद को पेश नहीं रखा, आगे नहीं रखा, और अपनी जान का नजराना दिया है। मैं कुरान पाक की एक आयत यहाँ पे पढ़ूँगा, वला तहसबनल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युर्ज़िकून। ये सूरह इमरान की आयत नंबर 169 है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि जो अल्लाह की राह में मारे गए, हरगिज़ उन्हें मुर्दा न ख्याल करना, बल्कि वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं और रोज़ी पाते हैं। अभी हमारे मुझसे पहले कैप्टन असफंद यार शहीद के वालिद साहब ने यहाँ पे बातचीत की। सर, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मैं उस वक्त बहावलपुर में पोस्टेड था जब कैप्टन असफंद यार की शहादत हुई थी, और मेरे ब्रिगेड कमांडर उस वक्त ब्रिगेडियर कामरान, जो बहावलपुर से असफंद यार की शहादत की खबर सुन के बड़ा बेर पहुँचे थे, और वापस आने पे उन्होंने एक बात कही थी जिन्होंने हमें इस चीज़ में मज़ीद तक़वियत दी कि शहादत का रुतबा हर इंसान के लिए नहीं, बल्कि उन ख़ुसूस लोगों के लिए हैं जो पहले से अल्लाह ताला ने जिनका इंतखाब किए रखा है। उनका कहना था कि जब कैप्टन असफंद यार को कब्र में उतारा जा रहा था, तो हमने एक रात पहले से उनके ब्लड को साफ़ करना शुरू किया जो कि उनके मुंह से बह रहा था। हमने बहुत कोशिश की कि वो रुक जाए, लेकिन हमें उस बहते हुए खून के साथ ही 24 घंटे के बाद उनको दफन करना पड़ा। ये एक इस चीज़ की बहुत बड़ी निशानी है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात आपकी शहादत को कबूल करती है तो आपका खून खुश्क होने नहीं देती। और जो आयत का मैंने अभी तर्जुमा किया है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने रब के पास ज़िंदा है, ये एक हमारे सामने बहुत बड़ी निशानी है। इसके साथ मैं एक हदीस का रेफरेंस दूंगा
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को 2 कतरों से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं है। एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से बहाया जाए, और दूसरा खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहा दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहैसियत मुसलमान हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को रोल मॉडल, और उनके बगैर हमारी मुसलमानियत पूरी नहीं होती। ये उनका इरशाद है, ये उनकी हदीस है। तो शहीदों का रुतबा हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा है। मैं इस पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म में हमारे यहाँ पे मौजूद जितने भी शोहदा के लवाकीन हैं उनको यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान आर्मी किसी भी सिविलियन या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जिसके अंदर हमारी पुलिस, रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और आर्मी, इसके अलावा जो वो अदारे जो इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और जिनके जवान शहीद हुए हैं, उनकी इज्जत में कभी कमी आने नहीं देगी। और हम इस तरह के दिन को सेलिब्रेट करके अपने शोहदा के लवाहकीन को इस बात का यकीन दिलाते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि उनके लख्ते जिगर की कुर्बानी किसी भी स्टेज पे ज़ाया नहीं होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की के रास्ते पे अमल करेगा। आखिर पे एक शेर कहूँगा और उसका मफ़हूम ख़ुद उस शेर के अंदर बहुत क्लियर है। वो ये है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। वस्सलाम। कर्नल उमर साहब के जज्बात सलामत रहे, ये मुल्क सलामत रहे, हम सब सलामत रहे। जहाँ हमारी आर्मी वतन की हिफाजत के लिए दिन रात बॉर्डर्स पे अमन हो, जंग हो, आफात व बलियात हो, जल्जले हो, हादसात हो, अपनी फ़राइज़ अंजाम देती है, वहाँ हमारी पुलिस उन्होंने हमारे सुख के लिए, चैन के लिए अपनी नींद गंवा दी है। बहुत से जवान शहीद हुए हैं पुलिस के। आज आपने देखा सर पूरे फैसलाबाद के चौराहों में डिप्टी कमिश्नर साहब ने, मैम कमिश्नर साहबा ने उनके पोस्टर लगाए। पूरा शहर जो था रुक रुक कर सल्यूट पेश कर रहा था हमारे शहीदों को, हमारे वतन के रखवालों को। आप ही के लिए डॉक्टर आबद खान साहब को बुलाने से पहले आरपी फैसलाबाद आपकी नज़र ये शेयर करता हूँ कि तख्ता व तख्त में से हम एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ेद चीर दिया करते हैं। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर आबद खान साहब, मिनिस्टर साहब हैं हमारे, बहुत बिजी, उन्होंने टाइम बीच में से निकाला है। सर मैं आपके पेशेंट को भी सल्यूट पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज योम तकरीम शोहदा के दिन मैं तमाम शोहदा की जो फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, हमारा फैसलाबाद रीजन अपने घरों में मौजूद हैं, हमारे सूबे में अपने घरों में मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान में अपने घरों में मौजूद हैं, उन तमाम को मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनके जो प्यारे बेटे, बाप, भाई, खावन जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया है, उनकी तमाम फैमिलीज़ को मैं सलाम पेश करता हूँ। अपने भी आप पे, अपने डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के भी आप पे और अपनी तमाम फोर्स के भी आप पे। जो यहाँ मौजूद आए हैं, जिनको हमने दावत दी है, ये एक उस जो गुलदस्ता है उसके चंद फूल हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जो दीवारों पे लगी हैं, ये तस्वीरें जो डाइस पे लगी हैं,
ये तस्वीरें नहीं हैं। ये उनकी लाजवाल जो कुर्बानी है, जो उन्होंने इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के लिए अपनी जान कुर्बान की है, ये उसको एक ट्रिब्यूट पेश करना है। ये वो तमग़े हैं जो उनकी फैमिली के सीनों पे हैं, जो हमारे सीनों पे हैं। ये सिर्फ फ़ोटो नहीं है, ये हमारी कुर्बानियों का, उनकी कुर्बानियों का एक एक्नॉलेजमेंट है जो आप सब जिसके लिए यहाँ पे हाज़िर आए हैं। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि पाकिस्तान की बुनियाद में हमारे हज़ारों शहीदों का लहू है। ये जो बुनियाद शहीदों के लहू पे रखी गई, इस पे जो अमारत पाकिस्तान बनाई गई, इसके दीवारों में भी हमारे शहीदों का लहू है, जो सुबह शाम रात दिन पिछले 75 साल से हम दिन रात कुर्बानी दे रहे हैं अपने बैरूनी दुश्मनों को, अपने अंदरूनी दुश्मनों को। खा वो आर्मी है, हमारे बहरी फोर्स है, हमारी हवाई जो एयर फोर्स है वो है, खा वो पुलिस है, खा वो हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं, हमारी पेट्रोलिंग पुलिस है, हमारे स्पेशल ब्रांच, हमारे CTD के जवान, तमाम ने अपनी जगह किसी जगह पे भी कुर्बानी देने में कोई दकीका फरोगज़ाश नहीं रखा। हर एक ने अपना अपना हिस्सा इस मुल्क को, कौम की हिफाजत के लिए, अमन व अमान के लिए दिया है। इसके साथ साथ जो कि हमारा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार रहा, और जैसा कि आप सब के इल्म में है, कोई ऐसा मकतबा फ़िक्र, कोई ऐसा प्रोफेशन, कोई ऐसी जगह महफूज नहीं, कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ पे हमारे बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कुर्बानी ना दी हो, हमारे टीचर्स ने कुर्बानी ना दी हो, हमारे डॉक्टर्स और नर्सों ने कुर्बानी ना दी हो, हमारे वकला ने कुर्बानी ना दी हो। हर जहाँ आप जिस जगह जाएं, आपको हर महकमे में, हर प्रोफेशन में, हर मकतबा फ़िक्र में आपको शुहदा नज़र आएंगे।